Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome for this orientation session of BSc Honors in Applied Accounting by the Oxford Brookes University. I am your mentor for the day. My name is Farah Tabassum एंड हम इस ओरिएंटेशन सेशन में कोशिश करेंगे कि इस ओबीयू के प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारी जनरल क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, बहुत सारे कुछ प्री कंसीव नोशंस होते हैं, कुछ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। हम कोशिश करेंगे थ्रू दिस ओरिएंटेशन सेशन कि हम उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेरीज पे क्लैरिटी ऑब्टेन करने की कोशिश करें। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है दिस इज ऑफर्ड बाय द ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी through a signed agreement with between the university and ACCA. This program will not be continued after May 2026. So I would say अभी currently हम 2024 पे हैं. We still have almost 2 years left for you to benefit from this program. And essentially, I believe that this is the prime time. This is a wonderful time for you to invest in this, to a wonderful time for you to benefit from this opportunity, because without spending a lot of time, without spending a lot of money, you have a very easy route to obtain a graduation degree um, along with having a professional qualification of ACCA. Let's also find out a little bit more about the Oxford Brookes University. ये university क्या है, कब से exist करती है, and so on and so forth. So, what is the Oxford Brookes University? It is one of the universities which is located in England. It it was formally formed in 1992 जब दो different institutions का एक formal merger हुआ था, but its general history goes back for up to 150 years. 150 साल से ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, 150 साल से ये इंस्टीट्यूशन, इफ आई कैन से, एग्जिस्ट करता है। तो ये कोई आजकल की यूनिवर्सिटी नहीं है। इट इज अ वेरी वेल स्टैब्लिश्ड एंड आई वुड से अ वेरी वाइडली एक्सेप्टेबल यूनिवर्सिटी, अ वेरी एक बहुत इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है इस यूनिवर्सिटी की। एंड द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इट हैज बिन प्रोवाइडिंग फॉर ओवर 150 years, they are now providing it to the students of ACCA. तो students of ACCA can also benefit from their teaching, or if I can say from their education. In terms of ranking अगर बात की जाए तो globally it is ranked amongst one of the top 500 universities in the world. And this is in the world I am talking about. Matlab, approximately around 24,000, 25,000 universities exist globally, and making it um, one of the top 500 universities really speaks volumes about the kind of name that you are likely to add on to your resume. So imagine one of the top 500 universities in the world, and even within UK भी उसकी ranking within top 50 में आती है. If I remember correctly, the last I checked was I think 43rd की रैंकिंग थी या 42nd की रैंकिंग थी. But anyways, it is within the top 50 universities. And this is UK, a place which offers, जहाँ पे बहुत वेरियस यूनिवर्सिटीज हैं, और ईच यूनिवर्सिटी इज वेरी वेल renowned, or each university is offers very, if I can say, excellent educational platform. तो for a place such as UK, जो कि literally दुनिया का educational hub है, or it has been for over the many years, वहाँ पे within being one of the top 50 universities, again, uh, you can imagine the kind of name that you are being associated with. Um,
अच्छा, essentially why is the degree really beneficial for you? क्यों ये डिग्री इतना पुश करते हैं हम स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स दिस डिग्री? देखिए, आप लोग सब एसीसीए के स्टूडेंट्स तो हैं ही. एसीसीए इज आइदर यू आर एन अफिलिएट ऑफ एसीसीए, यानी आपने सारे अपने एग्जाम्स पास कर लिए होंगे एसीसीए के, या यूर एन एसीसीए मेंबर, या यूर करंटली परसुइंग एसीसीए. तो आपने, हो सकता है अभी आप करंटली एसीसीए के पेपर्स दे रहे हो. So you already almost have on hand a very widely acceptable professional qualification. बट उसके साथ साथ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाती है. यानी दिस डिग्री इज इक्वलेंट टू 3 years of graduation, 3 years of graduation. एंड ये डिग्री, एक 3 साल की डिग्री आपको ऑलमोस्ट 6 to 8 months में, 6 to 8 एक्टिव मंथ्स में आपको हासिल हो जाती है. सो नो डाउट these 6 to 8 months are going to be, sometimes they are going to be a little intensive for you. I'm not saying it's very easy, I'm not saying it's a piece of cake. Of course इसमें बहुत मेहनत जाती है, बहुत एफर्ट जाता है. Sometimes I really have to push the students. Sometimes it might get a little bit exhausting for you, बट इजंट इट वर्थ इट कि आपको एक 3 साल की डिग्री आपको 6 से 8 महीने के कुछ एफर्ट्स में हासिल हो जाती है. सो इट इज, अगर आप टाइम के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो इजंट इट अ वेरी efficient route for you, or isn't it a very efficient option for you? Yeah, even in terms of cost अगर हम बात करें, तो I also feel like that this degree is very, highly cost effective. अगर आप कहीं बाहर ग्रेजुएशन पढ़ने जाते हैं, यू हैव टू बेयर द ट्यूशन फीस, जो कि नंबर ऑफ कोर्सेज पे वैरी करती है. वहां पे लिविंग की कॉस्ट होती है, एकोमोडेशन कॉस्ट होती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है. यू आर अवॉइडिंग all these costs. Yani imagine the all the pounds that you would be saving, and yet being able to secure a graduation degree. सो फ्रॉम द टाइम पर्सपेक्टिव हमने बात कर ली कि ये टाइम के पर्सपेक्टिव से कितना एफिशिएंट है, और कॉस्ट के भी पर्सपेक्टिव से मेरे नजरिए में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. सो इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव डिग्री एंड ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. दैट बीइंग सेड, एसीसीए के साथ, यानी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, जब आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी आ जाती है, तो दिस allows you to pursue master's program. यानी मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो I studied this graduation degree, and I took some time off. I spent a little time gaining professional experience, and I decided that I wanted to pursue masters, and I applied to one of the universities abroad, and I was successful in not only securing admission to the university, but I was also successful in gaining scholarship at the university. And I believe that this was majorly due to the, because to the university I was viewed as an all राउंडेड और अ होलसम कैंडिडेट, कि मेरे पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी थी, और एक इतनी वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन डिग्री भी मेरी रेज्यूमे पे थी. अच्छा, नॉट जस्ट दिस, नॉट जस्ट बीइंग एबल टू परसू अ मास्टर्स प्रोग्राम either locally या internationally, but also the fact that universities with this combination of a professional qualification and a graduation degree, universities allow you कि आप कोई और field में भी masters pursue कर सकते हैं. So even though this was not the case for me, I chose to remain in the world of accounting, but there are a lot of people I know जो after ACCA, after this degree, थोड़े से work experience के बाद, about 5-10 years के बाद, they want to diversify themselves into different fields. So let's say I know people जिन्होंने masters in economics pursue किया है, जिन्होंने masters in data analytics pursue किया है, and with this, in this era of technology that we're living in, you can also pursue masters in fintech. So really with this degree आपकी सीवी पे एक इतना
या आई वुड से आपकी प्रोफाइल पे एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टैम्प लग जाता है दैट द यूनिवर्सिटीज रियली कंसिडर यू, इवन दो आपके पास उस फील्ड का उतना एक्सपीरियंस ना हो, बट द यूनिवर्सिटीज really consider you when you want to diversify into a different field. So in that regard also, this degree is really beneficial for you. Acha, it also generally helps with the immigration process. So you know, when you're relocating abroad, when you're relocating in countries within UK, Canada, Middle East, it really helps you with the immigration process. Acha, there is one another one which I would really like to highlight, जो although मैंने यहाँ पे state नहीं किया, but I really want to put it forward, is कि इस degree के बाद at a personal level you see a lot of difference, you see immense difference in the students. एक 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 इस 6 to 8 months की rigorous I would say training के बाद students में एक बहुत एक sense of clarity आ जाती है when it comes to their thought process. They know how they are able to articulate their thoughts really well, they are able to draft something really well. अगर एक general drafting skill की बात की जाए for students in ACCA, हमें ऑडिट के आंसर को ड्राफ्ट करना तो मे भी आता होगा, बट एक जनरल प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर हमें थ्रो किया जाए तो मे बी हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, माई ड्राफ्टिंग स्किल्स वर रियली रियली पुअर, अनफॉर्चुनेटली दे वर रियली रियली पुअर, बट थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ दिस और थ्रू दिस प्रोग्राम मेरी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत बेहतर हुई. आई एंडेड अप बीइंग केपेबल टू ड्राफ्ट फॉर्मल रिपोर्ट्स. मुझे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प हुआ. आई वॉज एबल टू क्रिटिकली एनालाइज एंड क्रिटिकली इवेल्युएट अ सर्टेन सिचुएशन. आपने वो जो एक रियली डीप डाउन किसी सिचुएशन को एनालाइज करना, किसी सिचुएशन को इवेल्युएट करना, वो स्किल्स आ जाती हैं. और मतलब एक 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 नॉर्मल नॉर्मल एसीसीए के स्टूडेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मे बी टेक्निकल स्किल्स होती हैं. उन्हें ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स आते होंगे, उन्हें आईएफआरएस आते होंगे, बट उनमें एक बहुत सारी प्रैक्टिकल एरियाज ऑफ वर्क में जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो लैक करता है. यानी अगर मैं अपनी ही मिसाल दूं तो आई वॉज द वन हु वॉज आई वॉज वेरी गुड व्हेन इट केम टू इनपुट्स इन technical accounting expertise, but I was extremely poor when it came to my drafting skills. मुझे ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी मुझे नहीं आती थी, ई मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करना मुझे नहीं आता था. यानी ये सब तो मैं बहुत फॉर्मल रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, मे बी शायद एक फॉर्मल ईमेल भी ड्राफ्ट करना मुझे तरीके से नहीं आता था. बट दिस प्रोसेस ऑफ ओबीयू रियली हेल्प मी कि अपनी बात को बहुत concisely, because when we get to that we will discover कि within this process हम एक certain word count से bounded होते हैं. तो कुछ अपनी बातों को बहुत concisely कुछ words में explain करना, बहुत प्रोफेशनली एक्सप्लेन करना, बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना, ये एक बहुत क्रूशल स्किल होती है जो आप में really over time आप में over this period of 6 to 8 months आपके अंदर imbibe होती है. This is something that will really immensely help you professionally. It will really help you stand out. And these are some of the reasons why this degree is very very beneficial for you. अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि who essentially is eligible for this program? कौन कौन इस प्रोग्राम में enroll कर सकता है? Who are eligible for this graduation degree? तो भाई सबसे पहला क्राइटेरिया by the Oxford Brookes University is that you need to complete all 9 exams of ACCA applied knowledge and applied skill levels. तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे F1 से लेके F9 तक के एग्जाम्स आ जाते हैं. अच्छा, this you need to clear at the time of submission. तो सबमिशन के टाइम तक आपकी ये सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए. सो लेट्स से इफ आई एम going for the November submission,
और मैंने जून में अपने F9 का एग्जाम दिया होगा, तो एम आई एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम? यस, यू आर एलिजिबल, बशर्ता कि आपका नवंबर के सबमिशन के टाइम तक वो एग्जाम क्लियर हुआ हुआ हो. सो यस, यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर दिस प्रोग्राम. You would not be eligible if you hold exemption to any of these 9 papers, यानी इसमें F7, F8 और F9, इनमें से किसी भी 3 पेपर्स में इनमें किसी भी 3 पेपर्स में आपकी एग्जेम्पशन होगी. यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट. एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से कुछ स्टूडेंट्स सीए के बैकग्राउंड के आते हैं, कुछ और डिफरेंट रूट से एसीसीए में आते हैं, और वो एग्जेम्पशन के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं. सो एग्जेम्पशन फॉर F1 to F6, either of these exam is okay. बट F7 से लेके F9 तक की अगर आपने कोई एग्जेम्पशन के लिए आप एलिजिबल हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपको उस एग्जेम्पशन को फॉरफीट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीट करना पड़ेगा? आपको, यू हैव टू एक्चुअली टेक दैट एग्जाम, आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा, आपको वो एग्जाम पास करना पड़ेगा, एंड therefore you would be eligible for this program. अच्छा, you also need to complete this ACCA ethics and professional skill module. तो जब OBU का एक information pack आता है, basically we would be expecting to receive it shortly for 2024 and 2025. In that OBU information pack different dates लिखी होती हैं. तो let's say if you want to go for the November submission, November 2024 submission, उसमें डेट लिखी होगी कि भाई लेट्स से 7 नवंबर तक या 8 नवंबर तक मैक्सिमम स्टूडेंट सबमिट कर दें. तो उसमें डिफरेंट डेट्स के साथ साथ एक ACCA एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल की भी डेट लिखी होती है. तो इफ यू गो यू बाय दैट डेट, आपको एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल को भी कंप्लीट करना होता है. अच्छा, इसकी आई बिलीव नवंबर, जनरली फॉर द नवंबर सबमिशन आई थिंक सितंबर के अराउंड कोई डेट होती है. तो बाय सितंबर यू नीड टू कंप्लीट दिस एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल. अच्छा, ये किसी एग्जाम की तरह नहीं होता, देयर इज नो पास एंड फेल. तो बेसिकली कुछ सेल्फ learning के materials होते हैं. You need to go through that, you need to answer a couple of questions, and that is it. So invest some time into it. Be careful of the date कि भाई last date मेरी ethics and professional module की कब तक है, for you to be eligible for either the November 2024 attempt or November 2024 submission period for OBU, or the May 2025 submission for OBU. अच्छा, 9 एग्जाम्स हो गए, एग्जामेशन की हमने बात कर ली, एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल की बात कर ली. उसके साथ साथ एक टाइम एलिजिबिलिटी का भी क्राइटेरिया होता है. सो you need to pass your RAP within 10 years of the earliest of the date of your first ACCA exam pass. So ये कुछ थोड़े ACCA के पुराने स्टूडेंट्स के लिए है. So let's say if you took your first ACCA exam in 2015, you are eligible. अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक टाइम एलिजिबिलिटी भी होती है. तो यू नीड टू पास योर रैप. रैप इज द रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट. सो बेसिकली इस पूरे OBU के प्रोजेक्ट को हम रिसर्च एंड एनालिसिस बोलेंगे. इवन व्हेन वी लेटर इंटरैक्ट, मैं OBU या BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आप लोग रैप कर रहे हैं. तो रैप इज रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट. तो इस रैप के लिए it would be 10 years of the earliest of the date of your first ACCA examination pass. So basically let's say अगर आप, अच्छा ये ACCA के कुछ पुराने स्टूडेंट्स के लिए है. So let's say if you took your first ACCA exam in 2015, you are eligible to go for this program until 2025. तो उसका एक मोटा मोटा ये उसूल है. Or you need passing 3 ACCA exams, either applied skills or strategic professional, within 5 years of the submission of your RAP, or being a full member. अगर आप full यानी 5 years from your last skill or professional exam, या अगर आप full member हैं तो then you can go for this program. अच्छा, essentially इस प्रोग्राम में होता क्या है, यानी let's speak of some of the यानी मतलब अगर मैं बहुत सादा जबान में बात करूं तो इस प्रोग्राम में करना क्या है. आपने
हमने प्रोग्राम के बेनिफिट्स पढ़ लिए, हमने प्रोग्राम के, लेट्स से अज्यूमिंग मैं एलिजिबल भी हूँ इस प्रोग्राम के लिए, अब मैंने करना क्या है इस प्रोग्राम में, मतलब व्हाट डू आई नीड टू डू टू गेट दिस ग्रेजुएशन डिग्री। तो भाई इस प्रोग्राम में या इस डिग्री में, जैसा मैंने बोल लाइक आई मेंशन अर्लियर, हम रैप बोलेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट। अब इस रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट में हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे हम काम कर रहे होंगे। सो फर्स्ट इज द रिसर्च रिपोर्ट। ये एक वर्ड फाइल होती है, 7,500 वर्ड्स मैक्सिमम की एक वर्ड काउंट है। सो लाइक आई मेंशन अर्लियर, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स पे एक सर्टेन वर्ड काउंट पे भी रिस्ट्रिक्टेड होंगे। सो फॉर दिस डॉक्यूमेंट हम 7,500 वर्ड्स का हमने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा। अच्छा, ये मेन डॉक्यूमेंट होता है, ये मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें आप पूरी अपनी एनालिसिस और इवैल्यूएशन कर रहे होगे, आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होगे, आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स थ्रो कर रहे होगे। सो ये एक मेन कोर डॉक्यूमेंट है। इन एडिशन टू दैट एक और डॉक्यूमेंट सबमिट होता है विच इज, जिसको हम स्किल्स एंड लर्निंग स्टेटमेंट कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म एसएलएस। तो एक और डॉक्यूमेंट है नेम्ड एसएलएस। एसएलएस का 2000 वर्ड का वर्ड काउंट हो सकता है मैक्सिमम, एंड दिस बेसिकली समराइजेज योर एक्सपीरियंस और योर जर्नी थ्रू आउट दिस 6 to 8 months। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या क्या लर्न किया, हाउ डू यू फील now that you have this degree, or now that you are now that you are done with your research report, how do you feel, how do you think you have polished yourself। तो इस तरह का एक एक सेल्फ बेस्ड या आई वुड से एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन भी सबमिट होती है, तो ये बेसिकली एक पीपीटी की फाइल होती है। यू नीड टू प्रेजेंट or basically you need to deliver a presentation to your mentor जिसमें आप पूरी अपनी रिपोर्ट की फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को समराइज कर रहे होंगे। एक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस भी बनती है, अगेन अ वर्ड फाइल, बट दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ द और बेसिकली summary of the list of the sources that you have used for your research report। इस पे कोई इतनी खास मेहनत नहीं करनी होती, this ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल हेल्प यू विद। एंड द फिफ्थ वन इज दिस स्प्रेडशीट, यानी एक एक्सेल की फाइल भी होती है, उसमें आपकी जो कंपनी हो आपने सेलेक्ट की होती है उसकी प्राइमरी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो नॉट ऑल प्राइमरी स्टेटमेंट्स बट प्राइमरीली इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और उसमें आप कुछ फॉर्मूलाज भी कंप्यूट कर रहे होते हो। तो इसेंशियली ये 5 डिलीवरेबल सबमिट होते हैं। अच्छा, obviously we will get into a lot of the details when it comes there कि भाई हर हर डॉक्यूमेंट पे आपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है। बट द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग इज दिस रिसर्च रिपोर्ट। दिस रिसर्च रिपोर्ट मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, यानी आपने ना सिर्फ 7,500 वर्ड्स लिखने हैं जो अभी शायद आपको बहुत थोड़े लग रहे होंगे, बट व्हेन यू कम देयर एंड व्हेन यू रीच दैट स्टेज, तो 7,500 वर्ड्स लिखना बहुत इट कैन गेट रियली चैलेंजिंग समटाइम्स। एंड सिर्फ 7,500 वर्ड्स नहीं लिखने, दोज हैव टू बी रियली quality words. You have to produce some really good quality argument. Your analysis, your evaluation really has to be very top notch. And not to scare you, I am here for that, but this is essentially kind of a background कि भाई हम जब जब बात कर रहे होते हैं कि भाई हम इन 6 से 8 महीनों में क्या कर रहे होंगे, तो हम उन 6 से 8 महीनों में इन डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होंगे, जिसपे हमारे आउट ऑफ विच सबसे ज्यादा टाइम हमारा इस रिसर्च रिपोर्ट में ही कंज्यूम हो रहा होगा। एंड लेट्स बी a little clear on our roles कि मेरा रोल क्या होगा। आई विल बी योर मेंटोर फॉर this program and you will be my mentee. Let's be a little clear on what to expect from the mentor. So basically mentor यानी मेरा रोल होगा कि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, मैं आपको क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर रही होंगी, मैं आपको कुछ भी डिक्टेट नहीं कर रही होंगी। ये बात तो आप भूल जाएं कि इट विल बी लाइक एनी अदर एसीसी क्लास जहाँ पे आपको आंसर डिक्टेट कराया जाता था, या
मेरे जमाने में ब्लैक बोर्ड पे टीचर आंसर लिखते थे, या नाउ दैट एवरीथिंग इज ऑनलाइन, अभी भी टीचर्स लिख के अपने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको आंसर्स डिक्टेट कर रहे होते हैं. इट इज नॉट going to be like that, not even close, not even close. My role would be to have sessions with you. उस सेशंस में यस मैं आपको कुछ हम उस कंटेंट को कवर कर रहे होंगे जो आपने ऑलरेडी एसीसीए में पढ़ा हुआ है. और कुछ हम प्रैक्टिकल आज की बिजनेस एनवायरनमेंट को भी कवर कर रहे होंगे, कुछ प्रैक्टिकल आज की कंपनीज को भी मे बी कवर कर रहे होंगे, क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस कंपनीज फेस करती हैं उनको भी कवर कर रहे होंगे. बट आई विल नेवर बी गोइंग टू डिक्टेट यू, मतलब मैं कोई क्लासेस नहीं ले रही होंगी. आई विल नॉट बी डिक्टेटिंग यू दी आंसर्स कि अच्छा भाई अब आप रिपोर्ट में ये लिखें. दिस रिपोर्ट विल entirely 100% be your own work. My job is to provide a sense of guidance. My job is to really challenge your work. कि भाई आपने ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं, या इसकी implications क्या हो सकती थी. I can challenge your work, but एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस या मेजर थॉट प्रोसेस, मेजर डिसीजन मेकिंग, वो सब कुछ आप करेगा. You need to take the decisions with respect to your report. You need to select the topic. You need to select the company. You need to come up with analysis and evaluation. मैं बस उसको चैलेंज कर सकती हूँ, या मैं बस उसको कह सकती हूँ कि नहीं यार ये बहुत बेकार लिखा है, या ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बहुत अच्छा लिखा है, दिस इज वंडरफुल, कंटिन्यू विद दिस थॉट प्रोसेस. बट आई विल नॉट बी राइटिंग एनीथिंग फॉर यू. मैं आपके लिए रिपोर्ट का कोई एक चंक भी आपके लिए लिख नहीं रही होंगी. This is entirely 100% your own work. Again, I really emphasize on this because I am aware of a lot of the unethical practices that are going on in the market. I do not want to pinpoint anyone, but I just want to be very, very clear कि मेरे सामने आप प्लीज वही रिपोर्ट प्रेजेंट करिएगा जो रिपोर्ट 100% आपकी अपना पीस ऑफ वर्क हो. दिस इज नॉट अ ग्रुप स्टडी. दिस इज नॉट अ कंबाइंड स्टडी के भाई हम लोग दो दोस्त तीन दोस्त मिलके आपस में एक रिपोर्ट लिख लेते हैं. नो, आपकी रिपोर्ट सिर्फ दो लोग पढ़ रहे होंगे, एक आप एक मैं. दैट इज इट. Not your friend, not your best friend, not your colleague. Nobody is going to even read your report. Read your report. Let alone having a sense of input into it. Nobody is even going to read your report. Um, I will be there to push you. I will be there to motivate you. I will be there to challenge you. I will be there to guide you. अगर आप किसी सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आई विल बी देयर टू पुश यू, आई विल बी देयर टू इनकरेज यू, आई विल बी देयर टू अपलॉड यू. बट अगेन ये पूरी की पूरी रिपोर्ट विल बी इंटायरली योर पीस ऑफ वर्क. I fortunately, unfortunately, I or no mentor for that matter, no mentor can guarantee you a pass. कोई भी आपसे प्रॉमिस कर रहा है तो ट्रस्ट मी वो आपको धोखे में रख रहा है. नो बडी कैन गारंटी यू अ पास. बट वट आई कैन गारंटी यू is that I will be there to push you, I will be there to motivate you, and more importantly, I will be there to challenge you. क्योंकि sometimes over the years, um, sometimes students feel कि मैं probably बहुत brutal हो रही हूँ उनके साथ, but that is purely because I really, really want to bring out the best within them. I really, really want to challenge them on, and nothing personal, but it is all very, I want to have some constructive arguments with them. I really want to see कि वो इस रिपोर्ट को और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे बना सकते हैं. तो please, no unethical means nobody can write the report for you. No unfair means if आप प्लीज मेरे पास तभी आइएगा इफ यू आर विलिंग टू राइट दिस रिपोर्ट योरसेल्फ. आप अच्छा, दैट बीइंग सेड, आप
again, now that we live in this era of technology, you cannot even rely on chat gpt, you cannot even rely on any other ai tool for this report. सॉफ्टवेयर्स, यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर्स बहुत इजीली आपकी रिपोर्ट के प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर लेंगे. इट इज very easy for them, trust me. If you think you're smarter than them, you are not, you are not. तो प्लीज काइंडली जो भी रिपोर्ट लेके आए मेरे पास, it should entirely 100%, please यार, be truthful, be honest to yourself, be honest to your degree. It must 100% be your own piece of work. And then I'm willing to really be your mentor. I'm willing to really push you. I'm willing to really help you refine your piece of work. But you need to promise कि ये 100% आपका अपना, it is entirely your um, work. No chat gpt, it is not a collective work, it is not a group study, it is 100% you. 100%. अच्छा, कुछ ग्रेडिंग की भी बात कर लेते हैं कि नाउ दैट हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी, हाउ विल वी बी ग्रेडेड ऑन दैट. अच्छा, इसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं या डिफरेंट क्लासेस होती हैं. फर्स्ट क्लास होती है, अपर सेकंड होती है, लोअर सेकंड होती है और थर्ड क्लास होती है. तो डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिसकी जो आप जब आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस पर लिखा आएगा कि आपको कौन सी क्लास अवार्ड हुई है. अच्छा, दिस ग्रेडिंग इज ऑन दी ऑन टू कंपोनेंट्स. एक तो ए के आपकी एसीसीए की स्किल्स एग्जाम यानी F1 से लेके F9 तक का एक एक एवरेज जो आपका स्कोर रहा होगा वो अंडर कंसिडरेशन आता है. तो F4 से F9 तक के एग्जाम्स का एवरेज मार्क अंडर कंसिडरेशन आता है. तो F4 से F9 तक के जितने मार्क्स होंगे डिवाइडेड बाय 6 एग्जाम्स, तो वो आपके एक एवरेज मार्क्स आ जाएंगे. प्लस आपने रिपोर्ट इटसेल्फ या आपने जो रैप सबमिट कराई है उस रैप का क्या ग्रेड एग्जामिनर ने आपको असाइन किया है. सो दिस ग्रेड कैन आइदर बी ए, आइदर बी बी और आइदर बी सी. उन दोनों को कंबाइन करके आपकी प्रोजेक्ट की असेसमेंट होती है. उन दोनों को कंबाइन करके आपकी प्रोजेक्ट को या आपको ओबीयू के लिए ग्रेड किया जाता है. तो इफ लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 68 या 68 से ज्यादा रहे हों फॉर दीज एग्जाम्स, तो उसको रैप इटसेल्फ में ग्रेड ए मिले, बी मिले या सी मिले, उसको फर्स्ट क्लास डिग्री ही अवार्ड होगी. अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी किसी स्टूडेंट का एवरेज मार्क 50 या 52 के अप्रोक्सीमेटली आता है तो उसको ए ग्रेड मिले, बी ग्रेड मिले, सी ग्रेड मिले, उसको थर्ड क्लास डिग्री ही अवार्ड होगी. ये ABC की ग्रेडिंग मेरी रैप की बेसिस यानी जो डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट कर रही हूँ ओबीयू को उनकी बेसिस पे असाइन होता है. और जो मेरी क्लासेस होती हैं यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड, अपर सेकंड, लोअर सेकंड और थर्ड क्लास, ये मेरी ACC के एवरेज मार्क्स की बेसिस पे होता है. इफ लेट्स से योर अच्छा, तो इस इन इन दोनों केसेस में यानी फर्स्ट क्लास वाले केस में भी और थर्ड क्लास में कोई स्टूडेंट फॉल कर रहा है तो उस केस में भी आपने यू जस्ट नीड टू टारगेट दैट यू नीड टू पास योर रैप. वंस योर रैप इज पास आपको हर हाल में फर्स्ट क्लास डिग्री ही अवार्ड होगी. वंस योर रैप इज पास आपको हर हाल में थर्ड क्लास डिग्री ही अवार्ड होगी. तो आपने बस टारगेट करना है कि भाई मुझे रैप इंशाल्लाह पास करनी है. एंड इफ माई रैप inshallah gets through, if you're able to pass it successfully, आपको फर्स्ट क्लास डिग्री या थर्ड क्लास डिग्री जो भी आपका केस है whatever the case may be, आपको वो डिग्री असाइन हो जाएगी. अगर किसी स्टूडेंट के 67 मार्क्स आते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के 67 मार्क्स आते हैं तो उसको तब अगर उसके रैप की ग्रेडिंग ए या बी होगी तो वो फर्स्ट क्लास में फॉल करेगा. और अगर उसके रैप की ग्रेडिंग सी होगी तो वो अपर सेकंड क्लास में फॉल करेगा. ओवर द इयर्स जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ज्यादातर की ग्रेडिंग ऑन एवरेज बी होती है. ए बहुत कम बच्चों का आता है. इवन दो आई डू नो अ कपल क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनका ए ग्रेड भी आया है, बट ज्यादातर मेजोरिटी का B to C के बीच में ग्रेडिंग होती है.
So this is how you would be graded for this program. And lastly, another topic that I would like to touch base is why do a lot of the students fail. अच्छा, इस प्रोग्राम का एक जनरल पासिंग रेशो इज समवॉट अराउंड 65 to 70%. कभी 67 कभी 66% होता है, कभी 67% होता है. सो दैट्स अ गुड पासिंग रेशो. बट it is best if we also cover areas, yeah, points as to why some of the students are unsuccessful. Unfortunately ऐसा क्या होता है कि वो students unsuccessful होते हैं. तो एक तो very common reason is plagiarism. Very 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 common and a very silly reason. मतलब it is something so silly. आपको अगर जब जब OBU का information pack भी रिलीज होगा, आप ओबीयू के इन्फॉर्मेशन पैक में पढ़ना, एग्जामिनर बार 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 आपको प्लेजरिज्म से डिस्करेज करता है. वो बकायदा आपकी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ लिखवाता है कि भाई आप प्रॉमिस करो, मुझे लिख के दो कि आपने कोई अनफेयर मीन्स नहीं इस्तेमाल की, आपने सारी एथिकल गाइडलाइंस फॉलो की हैं. उसके बावजूद इट इज वेरी एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. बहुत सारे तो नहीं कहना चाहिए, बट जनरली कुछ स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दे थिंक कि किसी को पता नहीं चलेगा, बट इट इज वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू फाइंड इट आउट लाइक दिस. तो एग्जामिनर बहुत इजीली इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है. आइदर किसी और की रिपोर्ट में से कुछ चंक्स उठा के आप अपनी रिपोर्ट में लिख दो, या किसी और के थॉट प्रोसेस, इवन के किसी और के थॉट प्रोसेस से भी आप थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस हो जाओ और वो अगर आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करे, even then examiner will not allow that. इसके बहुत सीरियस रेपोकशंस होते हैं. प्लीज प्लीज प्लीज, अगेन आई स्ट्रांगली एम्फेसाइज कि this entire report, this entire rap should entirely be your own piece of work. It should entirely 100% come from you and you only. um अच्छा, ऑफन एक एग्जामिनर की एक और बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि भाई देर इज वेरी लिटिल एनालिसिस इन एवेल्युएशन. तो स्टूडेंट्स अब अभी तक, बिकॉज वी हैव बीन सो यूज टू ऑफ कि हम अगर लेट्स से एसीसी की भी बात करें, तो एसीसी में भी अगर हमारे पास कोई रेशोज का सवाल थ्रो कर दिया जाता है तो हम why is the current ratio improving? Current ratio is improving because current assets are increasing. Of course, of course the current ratio is improving because the current assets are increasing. There is no analysis, this is not, no evaluation. तो और हम लोग might be, could be, shall be करके बहुत सारी हाइपोथेटिकल बातें करके अपने रेशो की मूवमेंट को जस्टिफाई कर देते हैं. दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल फॉर दिस प्रोग्राम. ये एग्जामिनर का एक बहुत कॉमन कमेंट आता है, कभी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इफ द एग्जामिनर डज नॉट पास यू, वो जब आपको फेल कर रहा होता है तो वो बाकायदा ऐसे नहीं होता कि बस मैंने आपको फेल कर दिया एंड देन यू गो एंड फिगर आउट कि भाई मैंने आपको क्यों फेल किया. वो आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, उस रिपोर्ट में रीजंस ऑफ फेलियर लिखता है. तो एक बहुत कॉमन रीजन ऑफ फेलियर इज के स्टूडेंट्स मुझे ब्रेकअप बता रहे हैं, मुझे ये बता रहे हैं कि भाई करंट एसेट बढ़ा. करंट एसेट क्यों बढ़ा? क्योंकि मेरे रिसीवेबल्स बढ़े, मेरी इन्वेंट्री बढ़ी. बट देर इज नो इवेल्युएशन, देर इज नो एनालिसिस. इसमें आपने कोई बिजनेस की बात नहीं की. इसमें आपने बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस का क्या विजन है, क्या मेरे नंबर की मूवमेंट मेरे बिजनेस के विजन को सपोर्ट करती है नहीं करती, what has the company done over the years, what has it essentially achieved over the years. कोई ऐसी बात नहीं है, no sense of that. बस अगेन इन्वेंट्री बढ़ रही है, रिसीवेबल बढ़ रहा है, therefore my current asset is improved, therefore my liquidity position is improved. They do not need breakups from the annual report. They need very good and very strong arguments from you to really prove कि भाई मेरी liquidity क्यों improve हो रही है, मेरी liquidity improve हो रही है, मेरी क्यों. And you can maybe link it to revenue numbers, you can maybe link it to any one of acquisition जो कंपनी ने फेस की हो. तो really correlate, really एक आप wholesome पर्सपेक्टिव से कंपनी की बात कर रहे होते हो. तो अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स डू लैक दैट, व्हिच इज व्हाई आई, even when I am
even when we are nearing the submission date, मैं कोशिश करती हूँ that I push the students to submit their first draft of report to me at least 1.5 to 2 months before the submission date. And it may sound very silly to you, of course, or it may sound very exaggerated to you, but ऑलमोस्ट 70% केसेस में जो मेरे पास रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट आता है वर्सेस जो फाइनल ड्राफ्ट जा रहा होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बिकॉज पहले ड्राफ्ट में वो जो एनालिसिस और इवैल्यूएशन जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, वो बहुत कम केसेस में मैंने देखी है। एंड आई रियली हैव टू टेक आई ऑफन एंड अप हैविंग वन ऑन वन सेशंस विद द स्टूडेंट वेयर आई रियली पुश देम कि यार इस तरीके से सोचो, इस तरीके से सोचो, या इफ दिस देन व्हाई नॉट दिस, इफ दिस देन व्हाई नॉट दैट, इसका इम्पैक्ट सोचो क्या होगा। तो आई रियली हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट। अच्छा, एक और बहुत कॉमन रीजन ऑफ फेलियर इज कि भाई हम क्लासेस नहीं ले रहे टाइम पे, हम एक एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन ही नहीं है, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट। अच्छा भाई कर लेंगे कर लेंगे, एंड इफ यू थिंक कि ये 20 days में डुएबल है, मे बी हो सकता है डुएबल हो भी, बट डू यू नो यू आर इन्वेस्टिंग a lot of time and a lot of money in this। मतलब आपकी सबमिशन फीस आप देखो, डू यू रियली वांट टू टेक दैट रिस्क कि अगर एक प्रोफेशनल मेंटोर आपसे कह रहा है कि नहीं ये 20 दिन की बात नहीं है, ये ओवरनाइट की बात नहीं है, यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्ट, एंड यू स्टिल मिसिंग योर डेडलाइंस, यू स्टिल सेइंग कि हाँ मैं कर दूंगा सबमिट, हाँ मैं कर देंगे सबमिट, हाँ आई विल शेयर विद यू फॉर योर रिव्यू, एंड आप मुझे सबमिशन से 20 दिन पहले 15 दिन पहले दो। डू यू रियली थिंक के मतलब if you really think that is the good attitude for you, then unfortunately I'm extremely um, I'm extremely sorry to say this, but this program is not for you. You really have to bring a sense of discipline in you. You really have to stay committed. एक 7,500 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखना इज नॉट अ जोक। किसी कंपनी को इतना डीपली जाके एनालाइज इवेलुएट करना इज नॉट अ जोक। यू रियली हैव टू टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। आपको एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी, आपको एक सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म इस रिपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा फॉर यू टू really get through, for you to really be successful. I am there to motivate you, I am there to push you, I am there to encourage you, but I cannot write the report for you. I can not do that, I can never do that. So if you are not willing to put in your 100%, I cannot do that for you. And that being said, this almost concludes my orientation session. So I hope I have, through this session, I hope I have answered a few of your basic questions. Obviously, बहुत सारे questions will be answered, या बहुत सारे questions maybe और arise होंगे when the OBU information pack for 24 and 25 is actually released. But ये कुछ general points थे, general principles थे that I have tried to cover in this session, and I hope to connect with you all soon. Thank you.